Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا کارنامہ حیدرآباد کی سب سے بڑی ڈیری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس بھینس کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور مسقط ڈیری، جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کے علاوہ فلیورڈ ملک کا جواب نہیں، اب پبلک کے بے حد اصرار پر پیش کر رہے ہیں ٹیٹرا پیک دودھ جو 4 مہینے تک رکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئس کریم کے ڈھیر سارے ورائٹیز جو بچوں کے من کو بھائیں، بچے تو بچے بڑے بھی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، مسقط ڈیری کے گن گا رہے ہیں۔ روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے آرڈر پر بھی دستیاب ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف مسقط ڈیری، کوٹلے عالیجہ، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں صفیہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں BCN اردو نیوز۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی سرخیاں۔ سال نو کے موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست، مختلف علاقوں میں ٹریفک تحدیدات۔ پتھر گٹی GHMC دفتر میں MIM معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری، آبی، برقی و بلدی عہدیداروں کا جائزہ اجلاس۔ میلا دیوپلی علاقے کے دردہ نگر میں صرف خواتین پر عاشق مزاج بندر کا حملہ، 20 خواتین زخمی۔ حیات نگر پولیس اسٹیشن حدود میں 35 سالہ نامعلوم خاتون کا بے دردانہ قتل، پولیس کو قاتلوں کی تلاش۔ اور راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں 34 سالہ نامعلوم شخص کی مست شدہ نعش دستیاب۔ اور اب جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ شہر میں سال نو تقاریب کے موقع پر پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر انوراگ شرما نے بتایا کہ اس موقع پر شہر میں ٹریفک کو باقاعدہ بنانے کے لیے 31 دسمبر کی درمیانی شب سے حسین ساگر ٹینک بنڈ کے اطراف گاڑیوں کی حمل و نقل پر تحدیدات عائد کر دی گئی ہیں۔ 31 دسمبر کی شب 10 بجے سے NTR مارگ، نیکلس روڈ اور ٹینک بنڈ پر گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کو خیرتآباد اور راج بھون روڈ کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ BR کے بھون سے NTR مارگ آنے والی ٹریفک کو اقبال مینار لکڑی کا پل کی جانب سمت موڑ دیا جائے گا۔ لبرٹی جنکشن سے سکندرآباد جانے والی ٹریفک کو MCH آفس وائی جنکشن کے پاس موڑ دیا جائے گا۔ خیرتآباد مارکیٹ سے نیکلس روٹری کی جانے والی ٹریفک کو میرا ٹاکیز کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ سے متصل منٹ کمپاؤنڈ لین کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ نلکنٹا ریلوے برج سے آنے والی گاڑیوں کو سنجیویہ پارک اور نیکلس روڈ کی سمت جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں کربلا میدان یا منسٹرز روڈ کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ تمام فلائی اوورز ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔ 1 جنوری سن 2014 کو صبح کی اولین ساعتوں یعنی کہ 2 بجے تک ٹریول بسز، لاریاں اور ہیوی وہیکلز کو شہری حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دوران ٹریفک پولیس کی جانب سے شراب پی کر گاڑی چلانے، تیز رفتار ڈرائیونگ، 2 پہیوں والی گاڑی پر 3 افراد کی سواری کے علاوہ دیگر ٹریفک قواعد کی خلاف ورزیوں کی سختی سے جانچ کی جائے گی۔ پولیس کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔
हल्का असेंबली चारमीनार के बलदी डिवीजन पत्थरगट्टी के पंजेशा में वाक़ GHMC ऑफिस में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, साउथ जोनल कमिश्नर रवि किरण, डिवीजन कारपोरेटर मोहसिन बलाला, बलदी बरखी व आब रसानी अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर इस इलाके में बलदी के नामुकम्मल इक़दाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में यह इजलास मुनक़िद किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट रामचंद्र राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए अवाम और खास तौर पर मीडिया के नुमाइंदों को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना के सिलसिले में जल्द अज जल्द क़तई फैसला लिया जाना चाहिए। नई रियासत के क़याम के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए इक़दाम करने की ज़रूरत है। Where the proposal contained in the bill affects the area, God is an so the bill has been declared by the President and the legislature of the state for expressing its views. Thereon such period may be specified in the differences and so on. Legislature పంపించినప్పుడు ఒక స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ మన దానిలో టైం ఇచ్చారు జనవరి 23 వరకు. అప్పటి వరకు వాళ్ళ వ్యూస్ చెప్పడం జరిగింది. బాబుగా అలానే వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే అండ్ అదర్ అంటే ఇది గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, బాంబే ఆ స్టేట్ బైఫర్కేషన్ చేసినప్పుడు, మధ్య డిమర్జ్ చేసినప్పుడు, నిర్మాణం చేసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇదే అంశం పైన ఈ హైకోర్టు కోర్టు జరిగింది, సుప్రీం కోర్టు కూడా ఈ మ్యాటర్ వచ్చింది. వారు ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు స్టేట్ దట్ ఎట్ ది అవుట్సెట్ దట్ ఇదే వాదన ఏంటంటే ఓటింగ్ లేదు, డెమోక్రసీ లేదు, మెజారిటీ లేదు అనేటువంటి వాదన పెట్టారు. It is necessary to state that outside the task is to determine on proper construction of the true scope of Article 3 with particular reference to second condition. Laid out the provision they will be bring to a task and consideration of the germane to the interpretation of the organic instrument like constitution. But it will be improper to import into question of construction doctrine of democratic theory. అంటే మెజారిటీ ఉండాలి, అప్లై చేయాలి, ఓటింగ్ పెట్టాలి, ఇవన్నీ ఈ థ్యూరీ లేవు. అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ అదర్ స్కీమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ప్రొవిజన్స్ which have been asked in plain and underlying this language. The provisions to Article 3 of the Constitution states that where the proposal contained in the bill affects the area bounding the name of any state, the bill must be referred by the President to the legislative state. केसीनीनी व दिगर खानगी टूर्स एंड ट्रैवल्स पर हैदराबाद ज़राए हमलो नकल अहदेदारों ने धावा किया। इस मौके पर 6 कंपनियों के रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है और मुख्तलिफ मकामात से यानी कि कुकटपल्ली, दिलसुख नगर व दिगर इलाके जात में बुकिंग की जा रही है। इस सिलसिले में यह धावा किया गया। मजीद तहकीकात जारी है। खानगी ट्रैवल्स की जानिब से लापरवाही में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। अभी तक अहदेदारों ने जुमला 250 बसों को सीज किया, लेकिन इसके बावजूद भी नाकारा बसों की वजह से मुसाफिरीन की जिंदगी मौत की आगोश में सो रही है। लकड़ी का पुल में वाक़े धनंजय, केसीनेनी, कालेश्वरी, KVR, बालाजी और श्री कृष्णा खानगी टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफातर पर ज़राए हमलो नकल के कमिश्नर रघुनाथ की क़यादत में धावा किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रघुनाथ ने कहा कि न तो मुसाफिरीन के सिलसिले में मुकम्मल मालूमात दर्ज की जा रही हैं और न ही तफसीलात। एक जानिब अहदेदारान की जानिब से दावे किए जा रहे थे तो दूसरी जानिब दिगर खानगी ट्रैवल्स के जिम्मेदारान अपने दफातर बंद करके रफू चक्कर हो गए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में खानगी टूर्स एंड ट्रैवल्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जा रही है और मजीद दावे किए जाएंगे ताकि मुसाफिरीन की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। మరి హైదరాబాద్ రవాణా శాఖ దాడి చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు 6 కంపెనీలకు దుకాణాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రికార్డు చేయడం జరిగింది. అలాగే వాటితో 2 కంపెనీలకు కేసీఆర్, కాళేశ్వరి ఇటువంటి వాటిలో చేయడం జరిగింది. అందులో ఈ ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ అనేది కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ పర్మిట్ నిబంధనలకు విరుద్ధం కనుక వాటిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆన్లైన్ బుకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక పెద్ద తప్పిదం కనుక చేయడం జరిగింది. టికెట్స్ ఇస్తున్నారు, అది కూడా బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది.
కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక మోటార్ వెహికల్ చట్టం ప్రకారం టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్ లైసెన్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా తీసుకోవాలి. అది తీసుకొని కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్గా బుకింగ్కి వాడాలి. కానీ ఆ లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. అందువల్ల అలాంటి ఏజెంట్ లైసెన్స్ తీసుకొని దుకాణదారు ఈ ట్రావెల్స్ కంపెనీల యొక్క వీళ్ళ సిబ్బంది పైన కూడా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने 31 दिसंबर को हुसैनी अलम गर्ल्स जूनियर डिग्री व पीजी कॉलेज की सालाना तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक मेयर मीर जुल्फिकार अली के अलावा दिगर कॉलेजेस के लेक्चरर्स व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ा मुखातिब होते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि पुराने शहर में इस कॉलेज के क़याम के बाद पुराने शहर की तालिबात बेहतर तालीम हासिल कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का ख्वाब था कि वो पुराने शहर में यूनिवर्सिटी कायम करें ताकि पुराने शहर के तलबा व तालिबात भी आला तालीम हासिल कर पाएं। नतीबे मिल्लत से भी मैंने इसका जिक्र किया और उस क्लासरूम के इफ्तिताह के दिन भी मैंने ऐलान किया था। उसके बाद से आपके कॉलेज से एक मुरासिल आया जिसमें आपके कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम की दस्तखत है, सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल की दस्तखत है और नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल की दस्तखत है। तीनों ने मिलकर असद साहब से और मुझसे गुजारिश की कि 7 एकड़ या 6 एकड़ जमीन पर यूनिवर्सिटी के लिए दरकार है जमीन, आप उसका इंतजाम कीजिए। इंशाअल्लाह हम कोशिशों का आगाज हो चुका है। हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में खुसूसन बच्चियों की एक अच्छी यूनिवर्सिटी कायम हो और उर्दू यूनिवर्सिटी हो और उसमें तमाम लैंग्वेजेस हो। तेलुगु हमारी रियासत की ज़बान है, हमको उससे कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारी रियासत की ज़बान है, हम उसको पसंद करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो भी सीखे, हमको भी सीखना चाहिए। हमारी रियासत की ज़बान है, उसको भी तरक्की मिलना चाहिए। इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जो आलमी सतह पर हर एक को इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है और वो आलमी सतह पर उसको बहुत सारी सहूलतें फराहम होगी। उर्दू का ताल्लुक अदब से है, किरदार से है, अखलाक से है। उर्दू पढ़ना, उर्दू बोलना, उर्दू सीखना बेहद ज़रूरी इसलिए है कि उर्दू के ज़रिए हमारा जो मजहबी लिटरेचर है उसका तर्जुमा हम सुनते हैं, माने सुनते हैं तो उर्दू में सुनते हैं। उससे हटके भी दीगर लोगों में और हमें जो फ़र्क इम्तियाज मालूम होता है, उर्दू कहने वाले का अंदाज जुदागाना होता है और बड़े मेयारी अंदाज से वो अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है और उर्दू से जो नावाकिफ रहता है वो उसका मुकाम कैसा होगा आप कुछ महसूस कीजिए। मैं आखिरी मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, बोलते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। लखनऊ से एक साहब हैदराबाद को आए और चार मीनार के पास जाते जाते चार मीनार को देखे, उसके बाद एक साहब से पूछे कि ये रोड क्या सालार तक म्यूजियम को 1 जनवरी को कुल हिंद सनती नुमाइश के आगाज के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने अहम सड़कों पर ट्रैफिक का रुख तब्दील करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने एक एलामिया जारी करते हुए अजला की आरटीसी बसों और खानगी बसों के अलावा बड़ी गाड़ियों का रुख एमजी मार्केट से जामबाग रोड और एसए बाजार की सिमत कर दिया है। इसी तरह अजला व खानगी बसों के अलावा भी गाड़ियां पुलिस कंट्रोल रूम फतेह मैदान क्लब से नापल्ली और मौजम जाही मार्केट की सिमत जाने वाली ट्रैफिक को AR पेट्रोल पंप BJR मुजस्समे की सिमत कर दिया गया है। भारी और हल्की गुड्स गाड़ियां बेगम बाजार छतरी से मालाकुंडा की सिमत जाने वाली ट्रैफिक का रुख अलास्का जंक्शन की सिमत मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह गोशा महल रोड से जाने वाली ट्रैफिक का रुख अलास्का जंक्शन से फीलखाना बेगम बाजार की सिमत कर दिया जाएगा। मज़कूरा अहकामात 1 जनवरी से 15 फरवरी सनती नुमाइश के अख्ताम तक अमल में रहेंगे और शाम 4 बजे तक रात देर गए तक उन अहकामात नाफिज रहेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इत्तेहाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन का क़याम अमल में आया। इस यूनियन के सदर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और नायब सदर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी को मुंतखब किया गया। सरदार महल में एक इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें सदर की हैसियत से मुंतखब होने पर अहमद बलाला की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर अहमद बलाला ने कहा कि इस यूनियन के क़याम का मकसद
अवामी मसाइल का हल करना है। मसाइल के हल के लिए GHMC कमिश्नर से बात की जाएगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये ख्वाहिश और आप तमाम लोगों से मेरा तमाम लोगों को ये मशवरा है कि जिस तरीके से आज आप लोग तमाम डिपार्टमेंट के वर्कर्स, लेबर सब जो मिलकर हैं, इसी तरीके से मिलकर रहिए तो हमारा हर काम, हर हमारा मसला पूरा हो सकता है। नाज़रीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाअल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames, extraordinary services, doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले ले के खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। PCN उर्दू न्यूज में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। एक जानिब खवातीन को जहेज के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, जबरदस्ती शादी के नाम पर हिरासानियत का सामना है, तो दूसरी जानिब मेलार देवपल्ली इलाके के दुर्दा नगर में खवातीन को बंदरों के हमले का भी सामना है। 31 दिसंबर को उस इलाके में एक बंदर, जिसमें शायद नामुराद आशिक के जरासीम मौजूद थे, उसने अचानक 20 खवातीन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये खवातीन जो कि उस हमले में जख्मी हो गई थी, मुकामी हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। ये बंदर जो कि आशिक नामुराद लग रहा था, या तो नए साल के आगाज से कबल सिर्फ खवातीन को अपना निशाना बनाकर नए साल की मुबारकबाद दे रहा था, या फिर खवातीन से नफरत का इजहार कर रहा था। वजह चाहे कुछ भी हो, उसके हमले में कई खवातीन जख्मी हो गई, जबकि मर्द हजरात की जानिब से वो बंदर देख भी नहीं रहा था। उस इलाके की खवातीन को बंदर से भी खौफ आने लगा है और वो अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर रही हैं। मुकामी अवाम ने इसकी इत्तला मुकामी पुलिस और जू इंतजामिया को दी। पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन जू ओहदेदार नहीं। वो बंदर काफी फुर्तीला था, वो खवातीन को निशाना बनाता और गायब हो जाता। ऐसा लगता है कि शायद उसने धूम 3 देखी होगी, या फिर उसकी बंदरिया ने उसके साथ बेवफाई की होगी। మాట్లాడుతున్నా గోపాల్ రెడ్డి, వస్తీలో కుక్కలు చాలా విపరీతమైన కుక్కలు ఉన్నాయి. పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు, చిన్నపిల్లలు రోడ్డు వెంబడి పోతుండో కరుస్తున్నాయి. ఏదైనా సామాన్ తీసుకొని పోవాలంటే కూడా అవి వెంబడి పడి ప్యాకెట్లు గుంజుకపోతున్నాయి. పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎవరు చెప్పాలో మాకు అర్థమవుతలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు కోతి విషయం గురించి ఇప్పుడు వచ్చారు రిపోర్టు మేము ఇచ్చిస్తున్నాం కాబట్టి దానివల్ల ఇవన్నీ కొద్దిగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి అధికారులను కోరుతున్నాం. हयात नगर पुलिस स्टेशन हदूद में 35 साल नामालूम खातून के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले रंगारेड्डी के हयात नगर मंडल के बाटा सिकारम में 35 साल नामालूम खातून का कत्ल कर दिया गया। उसकी सर पर वजनी पत्थर से वार किया गया।
जिसके नतीजे में मुकामी वारदात पर ही वो फौत हो गई। ये वारदात बाटा सिंगारम से देशमुखी जाने वाली सड़क पर पेश आई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को शक है कि उस नामालूम खातून का इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया होगा। मजीद तहकीकात जारी है। ఈ బాట సింగారం దేశ్ముఖ్ రోడ్లో ఒక గుర్తు చేయని మహిళ చనిపోయబడి ఉంది. అయితే ఆమె వయసు 35 సంవత్సరాల దాకా ఉండొచ్చు. అయితే ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నెత్తి మీద బాది చంపేసినట్టుగా కనబడుతుంది. అది ఇప్పుడు కేసు రిజిస్టర్ చేసి నమోదు చేసి పరిశోధనలో తెలుసుకుంటాం. साढ़े 9 के मौके पर राजेंद्र नगर इलाके में बीसी तबके के अफराद की जानिब से मुबारकबादी के बैनर्स लगाए गए थे। नामालूम अफराद की जानिब से उन बैनर्स को नुकसान पहुंचाया गया। उन अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह पुलिस ने बरहम अवाम को तयक़ुन दिया कि सीसी कैमरों में मौजूद फुटेज के जरिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शमशाबाद पुलिस के हाथों नकली पासपोर्ट तैयार करने वाली टोली को हिरासत में लिया गया। शमशाबाद RGIA पुलिस स्टेशन के CI दुर्गा प्रसाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि सैबराबाद SOT टीम के ताउन से इस 2 रुकनी टोली को हिरासत में लिया गया है, जबकि सरवना की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि टोली चौकी के साकिन 30 साला मोहम्मद अदनान अंसारी 5 दिसंबर को शमशाबाद एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हुए थे। वहां से वो मलेशिया के लिए रवाना हुए। वहां पर जब एयरपोर्ट में तनखी की गई तो उस दौरान पता चला कि उनके पास पुर्तगाल और हिंदुस्तान का पासपोर्ट है। जब शमशाबाद एयरपोर्ट को रवाना किया गया और तहकीकात की गई तो इंकिशाफ हुआ कि संतोष नगर के साकिन मोहम्मद अब्दुल इलियास उर्फ आदिल की मदद से केरला के मुतवत्तिन सुनील ने 6.5 लाख में ये इंटरनेशनल पासपोर्ट तैयार करके उन्हें दिया था। उसमें इस टीम का सरगना सुनील बताया जा रहा है। इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए मजीद तहकीकात की जा रही है, जबकि सरगना की तलाश जारी है। 18th నాడు ఇప్పుడు మన ఉన్నటువంటి అన్సారీ మన ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ మీద దుబాయ్ వెళ్ళి దుబాయ్ నుంచి ఐర్లాండ్ వెళ్ళడం జరిగింది. ఐర్లాండ్లో అక్కడ స్క్రూటినీ ఏదైతే స్కానింగ్లో బ్యాగ్లో అతని వద్ద పోర్చుగల్కి సంబంధించిన ఇంటర్నేషనల్ పాస్పోర్టు అందులో ట్రేస్ కావడం వలన దాన్ని చెక్ చేసి అక్కడ దేశం వాళ్ళు ఇది ఫేక్ పాస్పోర్టు అనే ఉద్దేశంతో ఇతన్ని డిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ డిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మనకు ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు మనకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అతనితో పాటు అతని యొక్క ఇంటరాగేషన్లో ఏంటంటే అతనితో పాటు ఉన్నటువంటి అతనికి పాస్పోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు అనేది సునీల్ అనేటువంటి ఇచ్చిండు. ఎలా ఇచ్చిందంటే మా యొక్క ఫ్రెండ్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ ఫయాజ్ అనేటతను ఇతను ఉంటాడు, అతని ఎలియాస్ ఆదిల్ ఇతను ఇచ్చిండనే ఇంటరాగేషన్ మీద దాన్ని అతన్ని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. రిమాండ్ అయిపోయిన తదుపరి ఇతన్ని మళ్ళీ నిన్న 3 days బ్యాక్ దాన్ని మన కస్టడీకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయంలో ఇదంతా ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ సంబంధించిన పాస్పోర్ట్ విషయం కాబట్టి సిపి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేటటువంటి స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం మన నార్సింగ్కి సంబంధించిన OSD గోవర్ధన్ రెడ్డి సార్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేటటువంటి ఇన్స్పెక్టర్స్ అంజయ్ గారు అండ్ బస్వారెడ్డి గారి ఒక సహకారంతో వీళ్ళని యొక్క సంబంధించినటువంటి సంబంధించినటువంటి ఆదిల్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం సమాచారము అతను దగ్గర సేకరించడం జరిగింది. ఇంకా A3 అయితే ఎవరైతే ఉన్నాడో సునీల్ ఇప్పటి వరకు మనకు అతనికి సంబంధించిన వాడు వేరే దుబాయ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతన్ని ఇప్పటి వరకు చేయలేము. ఇద్దరికి సంబంధించిన పాస్పోర్ట్లను సీజ్ చేయడం జరిగింది. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के ACP अश्विन रेड्डी ने सालिनों के मौके पर आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस इलाके में सालिनों के मौके पर सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और तहदीदात भी आयद कर दी गई हैं। उन्होंने BCN उर्दू न्यूज़ के जरिए आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज 31st नाइट चल रहा कुछ से एक्सीडेंट्स अनटोल्ड इंसिडेंट्स नहीं होना बोल के ओवरऑल आउटर रिंग रोड पूरा टोटल बंद कर लिया। ओनली एयरपोर्ट पास एंड टिकट है तो वो लोगों को छोड़ रहे, दूसरों पूरा सर्विस रोड से जाना। वैसे PVNR एक्सप्रेस भी टोटली नाइट 11 से सुबह 5 बजे तक टोटल बंद रहता। जब पूरा पिकेट्स एंड चेक पोस्ट लगा के कुछ भी इंसिडेंट नहीं होना बोल के पूरा बंदोबस्त कर दिए।
पहाड़ी शरीफ पुलिस के हाथों सोलर पैनल्स धोखे से मुंतकिल करने के इल्जाम में एक मुलजिम पकड़ा गया, जबकि दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए पहाड़ी शरीफ सीआई भास्कर रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर और सलीम दोनों सोलर कंपनी के इनोवा गोदाम सेंचरा वेंचर में मुलाजिमत करते थे। 29 दिसंबर को टीसीएम की मदद से 200 से ज्यादा सोलर पैनल्स, जिसकी जुमला मालियत 15 लाख से ज्यादा बताई जा रही है, रवाना कर रहे थे कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से तमाम अशिया बरामद कर ली, जबकि सलीम की तलाश जारी है। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में एसआई वीरप्रसाद भी मौजूद थे। అలాగే ఇక్కడ సురాణ అపార్ట్మెంట్స్ అని దాంట్లో గోడౌన్ ఉన్నది, దాన్ని ఇన్నోవా గోడౌన్స్ అంటారు. అక్కడ ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇవన్నీ తయారవుతాయి. వాటిని డిమాండ్ని బట్టి వివిధ ప్రదేశాలకు పంపుతుంటారు. అలాగే అంటే యాజమాన్యం దీంట్లో కరెక్ట్ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. దాంట్లో పనిచేసే మేనేజర్ చంద్రశేఖర్ అనే ఆయన సలీం యొక్క సహకారంతో నర్సింహం ఇలా ఒకటి కంపెనీ పేరు ట్రేడింగ్ పెట్టారు, ఒకటి ఎన్సిఎస్ఎస్జి. ఆ కంపెనీ దాని పేరు మీద నర్సింహం యొక్క పాస్వర్డ్ తీసుకొని దాని వేబిల్ జనరేట్ చేసి యాజమాన్యం తెలియకుండా ఇతను 15 లక్షల విలువైన సోలార్ ప్యానల్స్ను శివకాశికి పంపేయడానికి చేసి దాంట్లో వేసి పంపించింది శివకాశికి. అది అక్కడ వర్క్ చేసే సుశీల్ కుమార్ రెడ్డి అనే అతనుకి అనుమానం వచ్చి డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ అయిన గౌతమ్ జైన్కు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు. మీరేమన్నా లోడ్కి ఇట్లా చెప్పిరా, ఏంది లోడ్ చేస్తున్నారు అంటే అతను మిగతా అందరిని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఇక్కడ మేమేం చెప్పలేదు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అతను ఇక్కడికి వచ్చే వరకే లోడ్ వెళ్ళిపోయింది, డీసీఎం లోడ్. వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తే వాళ్ళ వల్ల కానందున మాకు వచ్చి 29వ తారీఖు వచ్చి మాకు కంప్లైంట్ చేశారు. దాని మీద మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఇంట్రాగేషన్ చేసి ఇతను పట్టుకొని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే అతను తన తప్పును ఒప్పుకున్నాడు. మీన్వైల్ ఎప్పుడైతే పోలీస్ కేసు రిజిస్టర్ అయిందో అలా చెప్పడం వల్ల ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళకు ఆ లారీ కొద్దిగా మిస్టేక్ ఉన్నది, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఆపమనంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్లో పెట్టుకున్నారు. దాన్ని ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసి ఆ వెహికల్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి మొత్తం ప్రాపర్టీ 15 లక్షల విలువైన సోలార్ ప్యానల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒకరిని అరెస్ట్ చేసినాము, చంద్రశేఖర్ అంటే ఆయన. ఇంకో అతను సలీం అంటే ఆయన అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు. ఇంకా ఇద్దరు గతంలో ఏమన్నా ఇట్లాంటి పాల్పడ్డారు సార్? గతంలో ఇప్పటి వరకు తెలిసిన దాని ప్రకారం గతంలో ఏమీ లేనట్టుంది రికార్డు, అది కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాము. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शिवरामपल्ली कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ दिगर ने हसन नगर इंडिया नगर सरकारी स्कूल में मुनक़िद शुदनी इजलास में शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ ने कहा कि उस इलाके में सरकारी हाई स्कूल मौजूद है जो कि गर्ल्स है। गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इस मौके पर वहाँ पर मौजूद वालिदैन को मशवरा दिया कि लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए और कम उम्र में ही उनकी शादी ना करें, बल्कि उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही उनकी शादी की जाए ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सकें। इस मौके पर हारून रशीद, शेख मोइन, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मुख्तार अहमद व दिगर मौजूद थे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नाले में 34 साल नामालूम शख्स की मस्कशुदा नाश की दस्तयाबी से खौफ हिरास का माहौल छा गया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पिल्लर नंबर 124 के बाजू एक शादी खाना मौजूद है, उसके बाजू में एक नाला। उस शादी खाने में काम करने वाले अफराद ने उस नाश को देखा और इसकी इत्तला राजेंद्र नगर पुलिस को दी। इत्तला के साथ ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी है। मदरसे दारुल उलूम की जानिब से साल 2014 की नई जंतरी तैयार की गई है। इस जंतरी का इफ्तिताह कांग्रेस जीएचएमसी माइनॉरिटी कमेटी के कन्वीनर हसन शरीफ और NSUI मिर्जा मुअज्जम बेगम के हाथों अमल में आया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर सैयद मोहम्मद इरफान पाशा मुनीरी सिराज मुनीरी ने कहा कि इस जंतरी की खुसूसियत यह है कि उसमें न सिर्फ दीनी मालूमात, उलमाए कराम के फ़ोन नंबरात, ईदुल मोमिनीन जुमा के फ़ज़ाइल, दीनी मदारिस के फ़ोन नंबरात, मदारिस निस्वा के फ़ोन नंबरात, मशहूर मुमताज़ अकाबरीन, मुस्लिम तंजीमों और उर्दू रोज़नामों, मशहूर मारूफ शख्सियात,
MLA व कारपोरेटर्स के फोन नंबर भी दर्ज हैं ताकि अवाम इससे इस्तेफादा हासिल कर पाए। एक मुनीरी जिंदरी शाये की गई है जो इस्लामी कैलेंडर जिसमें उलमाए किराम के नंबरात और अहम शख्सियात के नंबरात हैं और इसमें दीनी बातें हैं, ये जरिए बहुत ही अहम है और मालूमाती है। आप तमाम से गुजारिश है कि इसे इस्तेफा। शाहीन नगर के मुख्तलिफ इलाक़े जात बालापुर सुभान कॉलोनी व दिगर इलाक़े जात की अवाम मुख्तलिफ बलदी आबी व दिगर मसाइल से परेशान हैं। मुकामी अवाम ने BCN उर्दू न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान खान से बात करते हुए बताया कि बार बार इस सिलसिले में महकमे बल्दिया के अहदेदारों से शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मुकामी अवाम ने कहा कि इन इलाक़े जात में ना तो पानी की सहूलत है और ना ही साफ सफाई की। इस गंदगी की वजह से उस इलाके की आवाम कई बीमारियों का शिकार हो रही है। खास तौर पर बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद ज्यादा मुतासिर हैं। मुकामी अवाम ने कहा कि इस सिलसिले में मुकामी बलदी बरकी व आबी अहदेदारों से शिकायत की गई, लेकिन ला हासिल रहा। मुकामी अवाम ने BCN उर्दू न्यूज़ के जरिए अरबाब मजाज से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस इलाके की आवाम के मसाइल को हल किया जाए। CC रोड के ताल्लुक से मैडम को भी हम जाके बोले थे CC रोड का मीठा पानी का, ना मीठा पानी हमारे पास अभी तक आया। टाँकियों के ताल्लुक से बोले ना टाँकियों का हुआ, और रोड पे मच्छर कचरा इतना है, ना बालापुर के सरपंच कोई तवज्जो है, ना बालापुर के कोई जो काम करने वाले इधर आके काम कर। जब भी मैडम का दौरा हो तो हर जो है नाली साफ़ करने वाला, कचरा साफ़ करने वाला बड़ी बड़ी रोड पे आता है, थोड़ी देर के लिए करता। मैडम जैसा चले गए वो पूरे चले जाते हैं। इधर कोई पुरसान हाल नहीं है, रास्ते सही नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं गड़ों पे, बड़े गिर रहे हैं, रास्ते में जाने आने को गाड़ियों से गिर जा रहे हैं, ऑटो में पलट जा रहे हैं। मच्छर इतना है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चों के लिए तकलीफ़ है, बच्चों को स्कूल की तकलीफ़ है। आंगनवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा, बच्चों को सहूलत हो जाता। दूसरा गरीब गुरबा है जो उनके लिए सहूलत हो, बस की सहूलत हो। रोड दूर है, औरतें जो है हामिल औरत है या ज़ईफ़ लोग है, बच्चों को लेकर रोड तक पैदल जाते हैं। बस की सहूलत हो गई, चांदमीनार से जो है मिनी बस बिस्मिल्लाह कॉलोनी को यहाँ जमजम बेकरी के पास से ला के अंदर आए तो पूरे लेडीज़ को सहूलत होती। रिक्वेस्ट है मैडम से, हमारे मैडम के फंड से जो है डेनिस लाइन का हुआ है, शुक्रगुजार हूँ मैडम का भी, अब अब्दुल्ला बिन अवध का भी, कि बेचारे उन्होंने भी कोशिश से जो है डेनिस लाइन वगैरह के हमारे जो है ला के सर्वे कराए, दौरे कराए। और मैं उम्मीद रखा हूँ कि CC रोड के ताल्लुक से जब भी बेचारे मेरे से फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं बेचारे। अब्दुल्ला बिन अवध से भी कोई शिकायत नहीं। शिकायत यह है कि जयपाल रेड्डी साहब जो MP फंड है, MP साहब जीतने के बाद आज तक हमारे शाहीनगर का दौरा नहीं करे, न शाहीनगर की क्या तकलीफ़ है कुछ नहीं आके हमारे पास देखे। हमारी तकलीफ़ ये है कि हमारे एरिया को कोई पुरसान हालने के जैसा होगा। MP को वोट डाले, MLA को वोट डाले, आज जयपाल रेड्डी साहब आज तक कोई शाहीनगर के हमारे कोई इसमें आके न सर्वे करे, न हमारी पब्लिक की जो तकलीफ़ क्या है नहीं देखे। भी ज़रा फिट करके टूट गई थी, वहाँ पूरा फूट के ये हो गई। यहाँ पहले थी पानी की टांकी? पहले थी, उधर थी, इधर नहीं थी। वो फूट गए पूरा टूट के नीचे गिर गई। तो हम बताए उन लोगों को, पहले भी लेके आके बताए करें। हम 2 टाँकियों के लिए बोले चाउस, पर एक भी टाँकी नहीं है अपने पास। ज़रा मेहरबानी होंगे हमारे अब्दुल्ला बिन अवध साहब से भी, जो 2 टाँकियाँ इधर दिए तो एक चौरस्ते के पास इधर होती है, आगे एक टाँकी जो टूट गई वहाँ पे भी सहूलत हो जाती पानी की, लोग आके लेके चले जाते। यूसुफपुरा इलाके में साइक्रन स्कूल बस को हादसा पेश आया। उस वक्त उस बस में स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक यूसुफपुरा इलाके में साइक्रन स्कूल बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके नतीजे में लोहे के पुल से टकरा गई। हादसे के साथ ही बस ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार की, जबकि बच्चे महफूज हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए वालिदैन व सरपरस्तों में खौफ व सरासीम का माहौल छा गया। BCN उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा अहम खबरों पर एक नजर। साले 9 के मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदा। पत्थरगट्टी GHMC दफ्तर में MIM मोतमद इमामी सैयद अहमद पाशा खादरी, आबी बरकी व बल्दी अहदेदारों का जायजा इजलास। मेला देवपल्ली इलाके के दुर्गा नगर में सिर्फ खवातीन पर आशिक मिजाज बंदर का हमला, 20 खवातीन जख्मी।
हैदनगर पुलिस स्टेशन हदूद में 35 साल नामालूम खातून का बेदर्दाना कत्ल, पुलिस को कातिलों की तलाश। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में 34 साल नामालूम शख्स की मस्तशुदा नाश दस्तयाब। इसी के साथ ही BCN उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तवस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Audio Jungle. The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames, extraordinary services, doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कट डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।